Rahman Rahim. Open up the cameras, anybody who is present. So what we did last time was that we created the left section of the home. Now we need to create the right section of the home section. And here I told you to create uh, the tilt using the vanilla. So we got the vanilla tilt. You just click it, go to that page I have shown you already. Then any among these guys, you just right click and save as, and put it in your folder which I just created here. I have saved that in the same folder. That's the vanilla till.js. Now we need to include that in our file. So we say script source, okay, and in the source we are saying vanilla tilt. Now we got the source, and जिसको भी हमें टिल्ट करवाना है तो उससे हम क्या करो लिखते हैं, we write the data tilt. Okay, this thing we have to add this thing wherever we want to tilt that thing. So command C हम कर चुके हैं already previously. So जो मेरा pick wrapper है मैं उसमें लगा लूँगा ये इसको data tilt, command V. ठीक है, and that's enough. और I can also, ज़रूरत नहीं है but this will be redundant, but just pick container को भी लगा रहा हूँ मैं, यानी कि now when I see there it's moving around. now चूंकि मैंने दोनों को लगाया तो अंदर से भी ये मूव हो रहा है, ठीक है, और वो बाहर से भी मूव हो रहा है, ठीक है. सो अंदर भी ये अंदर डिफरेंट मूवमेंट हो रही हैं और बाहर भी मूवमेंट हो रही हैं. सो दिस वाज द वन थिंग. नाउ आई वुड लाइक टू डिज़ाइन माई राइट साइड. ओके, न्यूज़ न्यूज़ मैंने बहुत सारे सब्सक्राइब किए हुए हैं, एक साथ आ जाते हैं फिर. एनीवेज, getting my point what I'm saying? Now we have to design our right side where we need to have some kind of a text things, and then some text which is going and coming, and then we need to have some buttons, and we need to have some social icons for contact and all, right? So here we had some little animations and all going on. It's looking pretty nice now for a while, and the dark mode is working fine. Now we need to design our right side. So that means I just go ahead and close this header right now. I don't need this header. Just close this header. What is this, day and night and all? This is in the comment out. Okay. Now I don't want this class, which is the switch wrapper and all, gone. And this is my navbar and all. Why is it not going? When the close the header, it should close all, right? Yes, gone. So close the header section is gone. In the home section we have created our pictures and all, right? So pick wrapper, I close it now. Now I got the text wrapper. This is the text wrapper. Why the text is there, this text which is here, it is here. So right, so I just go ahead and just delete this. And this text wrapper, I need to be, this can be your flex, right? Or this is just your text wrapper. And now I move on down. Okay, here I will create one p tag with the text of, with a class of p text. Wherever I have the p tag, I can use the p text to style it up. And here I am saying hello, or whatever you want to call it, or you see some salam and salutations and all. I am who you are. Then I will just create h2 with a h2 with some class name, but it will be a first h1 and couple of h2s I will have here. Okay, and I call them as a text dot text. Okay, so it will create me and I will create three h2s with the class text, but the first one is my h1. Okay, and here I want to keep my name. Okay, say Dr. Junaid is coming up here, and I got here the couple of h2s here. So this Dr. Junaid is going to be my this is going to be the p text right now. I call it the p text, for example, the first one, that's the paragraph text. Now this is the title text. I call it as a title text. Okay, and the rest one are the h2 text. The both of these guys are the h2 text. This is the h2 text. And after this I'm saying I am who you are actually. Okay,
then who you are will come up in this the next h2 text, and where I'm having a span, I'm having a span, okay, with the whatever you like to call it. Like, I just say text, you can say any name, but this name you need to put into the JavaScript. Remember this thing, okay, because we are using JavaScript to create different strings here, which will come up here. Right now it is empty, but we will use JavaScript to create strings for us. So we will use a library typed.js and all. We will see that we will use typed.js, okay, to stuff our things here, okay. Okay, now this is pretty much enough for this thing. Then I may need to have some kind of I may use br tags, couple of br tags, and or you could have used flex and then columns and all. You can do that also. Now I will have the buttons. I will have what? I will have three, four. I can have just two buttons technically, but I just made three buttons with some animations going on to learn about the button animation, right? So for that I will have the button container. So I got just simply the div with the button container, btn container. This is the button container. While I will create a div with the button container, okay. Now I will have some buttons here. Okay, I will just say write the button, and with the class name as a btn, and I create say three buttons, right? This is my first button, this is going to be second button, and this is going to be the third button. These two I keep the same name, and this one I create just the new btn. I just want to have some different style with this guy. These two I will keep the same style. And the first one, which is my download cv, I'm saying the download my cv, because anybody who want to see my cv and hire me, which can hire you, can download your cv from this button. The cv has to be placed in the resources. I just downloaded something from the internet just now while I was waiting for the class. So resume.pdf. This resume.pdf, you have to keep it in the resources, which will be downloaded later on the click of this button. So that means somebody will click on this button and it should get downloaded, right? So that means I should say on click firstly, on click. Okay, what do you want to do on click? You want to do window, okay, dot open, and the file you have, okay, which will be opened in the next folder, right? So in the single quotes I say I can say dot slash or directly, or dot slash. Dot means the current folder, I have explained to you last time, okay. Dot slash what is the name? Resume, but it's firstly in the resources, okay, in the resources. And there is the why is not showing? Have I done something wrong? Resources, is it in a resources folder or somewhere? It is in the resource folder, resume.txt. Why is not showing? Not R. I don't know why it's showing. Why is not showing? I'm doing something wrong here, I guess. But just put it resume.pdf. It should have shown me the resume.pdf and quotes close and this and that. So I'm saying windows.open because I'm using double quotes here. So therefore inside I'm using the single quotes, because if I use double quotes again inside, then it would be a problem. So I'm saying dot slash resources, okay. In that there is a resume.pdf, and just download that thing, and that's it. This is my download cv button. And for this, another button I have, and that is for maybe the contact. Maybe people want to contact me, they're liking what my stuff is. So therefore I'm saying the contact me. That means on click of this button, what should we do? On click of this button, you should go to some location, right? So I say then the location. So where the location is dot href, okay. And then I'm having here where you want to go. Maybe you want to go to the contacts. I'm already in my page, there is the contacts, or there is some where you want to go somewhere, which is definitely the contact. So I say hash contacts, which is an ID contact. You want to go there actually, which is already inside downside the page, the contact section. It can go there after this thing.
And here for this one I don't need it, but just for the animation and all to learn button animations, I'm creating this button and say click me. Okay, so I got two sections here. It will be pretty ordinary. Hello, I am Dr. Junaid, I am this, and these are three buttons here. Okay, and button container, maybe I will also make it as a flex so that I can manipulate them later on. Okay, and also this in the text wrapper, this could be also the flex. Okay, but leave it for a while. And then I have, this is a text wrapper, and I got here some p texts and h1 text and a couple of h2s. Then I got here the button container, and the button container got three buttons. Okay, now I need a social icons. Okay, like you want to go to LinkedIn, you want to go to maybe Facebook and GitHub, or wherever you have the social sites you have. You want to give link to all of those social sites here. Okay, okay, this is the button container finishes here. So that means after that I will use, after the button container, okay, I will use the social container. I will say dot social container. Now this social container will have the icons for the social classes. So we go on this site, and maybe because of font awesome, in a font awesome we go to the icons, right? We go to the icons, and then we download whatever the icons you want to have. Say maybe I want to say LinkedIn. Okay, LinkedIn icons maybe. So I got the LinkedIn. You can choose anyone. I'm choosing this one. So you just copy this, give it there, move. So we got the LinkedIn icon copied. We can put that here. Okay, in my social container, the first is, this is the LinkedIn icon. I may want the GitHub, and you can have the Facebooks, and you can have tons of things. I'll just show you two things. One is the GitHub, and GitHub we need it because that's important. Why? Because we want to show our projects. What projects you have built, you can show those projects in your GitHub. Okay, so just copy this and get it here. Command V. So we got a couple of icons here. I guess last time we have a font awesome का हमने लिंक किया हुआ था, है ना, जो कि फिर चला नहीं था बाकी वो आइकन्स. हाँ, वो लिंक किया हुआ है तो फिर वो आएगा. Yes, our icons are here placed. ठीक है ना? Okay, our icons are here. Our this is the pretty much we have in this section, but we need to now style them up so that they look pretty good. Okay, so first thing first. So what I have now is that we created the text wrapper. Text wrapper is my this was the pick wrapper. Okay, this is the wrapper. No, this one, the pick wrapper here. This is the section. This is the home section. I should put up a comment here that this is my home section. Home section. Okay, and this is here. From here, this was the left side of home section. Okay, having picture in it. Okay, right, getting oh, where I'm going now. This is pretty much this one, and this text wrapper here is actually the right hand side. Okay, this is the right side of home section. You should use extensively comments, having text and typed text. Okay, typed JS text, I will say. We'll see what is that. And buttons, we have also here the buttons and social icons and all that. They are all here, right? Okay, now we have here the text wrapper. Firstly, in the text wrapper we got the P, H1, H2 and BR tags, now these things. And then we got the button container where we got three buttons,
And with the social container where we got the two social icons, you can add up many more. Now we want to style them up. So we go down, and here I style my right side of home section. Okay, okay, here we are. Take a sip of green tea. So what the first thing that we have is a text wrapper, right? So we say dot text wrapper, dot text wrapper. So what else the text wrapper got to be? Okay, uh, because everything is in the text wrapper. Okay, then what else you want to have in it? Maybe you want to have them align. We can say align self. Uh, okay, align self to the center, which is already actually in a center. So, but still we want to make it sure. Text align also. If there is a text, we want to have them aligned to the center. Okay, and that's pretty much we want to have the text wrapper. And then this is my text wrapper basically, right? Script, where's the index decimal? This is the text wrapper, right? Where is the text wrapper? Gone, social container. This is my text wrapper where I am having all of these things. Okay, then inside we have the button container and we have the social container also. Okay, so maybe you want that there should be some kind of an a text shadow coming up everywhere, uh, everywhere. Okay, so you can add up the text shadow on the hover. So I say dot text wrapper hover. What I do is I want to have some text shadow. Text shadow, and text shadow is 0 0 means it will give the all around, not in the x and y directions, just all around everywhere, and some maybe some grayish or some bluish or something. Maybe I will use some yellowish, little yellowish, yeah, golden. Let it be little gold. Okay, when you hover the mouse over it, okay, it should show up, because it's not showing up right now because background is same, so we should have a different, not gold, because let it be little this thing, little blackish and so on, so that it will show up then. Okay, so now it's showing up shadow now. Okay, now it will when you actually hit it's showing up some little shadow. When we increase the font, you will understand. Okay, now we take up first the p text, right? The first thing is the p text. So dot p text, that is this guy, hello I am. I'm talking about this guy now, hello I am. How it should look like, I say firstly text line center, right? And what else you want? Font size, increase the font size. So font size, again we get in the VWs, let it be 4 VW, and check, let's check how is it. Yeah, it's pretty okay. Okay, but we want to make it bolder. It's not bolder, it's thin. So let's give it some font weight, maybe font weight of maybe 900, so that it will be a little fatter. And color is actually black already, so we don't need to give it color because it's already black, so let it be. So it's getting fatter and all, right? Now it's getting a little fatter and it's looking pretty okay for now. And if you see now, if I hover it, mouse over it, so it's getting that shadow and all, right? Hover mouse is getting the shadows. It's looking pretty nice. It's looking little 3D type. Okay, after the p text I have what? The title text, which is the name, right? If you see, if you forgot, index dot the here is the index. Now after p text I'm having now the h1, which is the title text. Now let's style up the title text. Okay, so what is title text? A dot title text. Are you guys with me, or you're pretty sleeping? So text align, gotta be center. Okay,
or you could have created the flex and all, so then you don't need to make it a center, it will be automatically center. Okay, but I'm not deliberately not using flex because we use flex extensively. I want to see if there is not flex, then how would you do that? Otherwise you can use flex, then you don't need to center, it will done automatically. फॉन्ट साइज उससे ऊपर थोड़ा सा करेंगे ज़्यादा जो हमारे पास है, तो 5 VW मैंने किया इसको 5 VW. Now it's coming a little bigger than this. And I want to make it bolder definitely, so that means font weight, let the font weight be 900 obviously, and let the color be like, you know, some kind of a blue color. I want just different blue color, it should be different than the above one. Okay, it's coming up. Okay, a little bit styling up. Okay, now then there is an h2 text, and for h2 text, you know, there is an h2 after this. This is the h2, couple of h2s. The first h2 is the one I am. The next ones we need to generate. Okay, so what is it all about is I go to the style.css and I hit up here the h2.text, where the h2.text it will be like, I want to say dot h2 text, and in h2 text we will use font size. I use font size, say 4, the same as the above one. Okay, 4 VW, that is the p text, the same as p text. And text align definitely center, text align because we are not using flex, so let it be center and all that. Now we are done with the h2 text, and then we have what is called as a span and all. Okay, we have a span and we want to generate text for us there. So here it looks firstly like this: hello, I am Dr. Junaid, I am, and if you hover a mouse, it's giving this that shadow. Now here the text should generate. That's called typed text. What's it called? Typed text. So that will come in this span, which is in a h2 text. They're taking the same as formatting of the h2, and the span is which is having a class of text. Okay, getting? So how now we generate our text in this, but we should not create a class of text, you should create the id of text, right? We should create an id of text. Okay, now for that you just go in a, we will use a library. Later on we understand each and every bit of it using JavaScript and all. I say typed.js. Okay, now we go to the typed.js here, the first link, that's it, that's the thing. This is the typed.js. Okay, it is the CDN link, we just copy the CDN. Okay, now this is a script source, and we want to add this script to our where we add the script. Definitely it's gonna be somewhere here. So command V. Now this is the script source, and it's telling me about the typed.js. Now we need to put up stuff into our script. So here I will say option command and /, and I say typed.js, and in our HTML we just put it up that the link to the typed.js, and now we would like to generate our text in our script. Okay, and for that you just see here, just see here, this is my script where type is a new type and all. Just copy this. Okay, command C and put that into your JavaScript here, command V. Okay, so where type is called new type. You can write type, you can do different variables, or you can use let here, then where, and I will tell you what's the difference between let and where later on. And we read JavaScript, and here we got the hash element, but I have created an ID of text there. You have to put up that thing, whatever you have put there. जो भी आपने यहाँ पे लिखा, इसको किसको जो स्पैन मेरा था, ये जो आईडी आपने यहाँ पे लिखा, अगर आपने यहाँ पे जुनैद लिखा हुआ है तो आपको वहाँ भी जुनैद ही लिखना है,
because we are targeting that thing. Okay, in our script we are targeting, we are creating जो हमारा टाइप्ड है, जो जावास्क्रिप्ट का जो लाइब्रेरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं और उसको हम आईडी पास कर रहे हैं, जो हमारा आईडी है स्पैन का वो। और उसके बाद हम स्ट्रिंग्स के अंदर चीज़ें लिख रहे हैं। मैं ये आई टैग वगैरह अभी हटा दूंगा, मैं अपने लगा लूँगा। आई जस्ट क्रिएट आवर ओन these strings, whatever strings we want. Say for example, you say firstly the developer. Okay, later on what is this doing, we can do it of our own when we read the JavaScript, but right now we are using the we are using what, we are using the library type.js. Whatever you want to put up here, Mern Stack developer, or I say I am, I don't know what, just going funny a little bit. Okay, I don't know. Okay, put up something who you are. Okay, maybe I am right now the tabardar, I don't know what. Then you have to this should not stop, so therefore you use the loop. Okay, loop is true, that means it should go forever, never stop, comma. Then type speed is 50. Okay, but there should be also the back speed when it's coming back and writing again, so you should say back speed. Let us give it same as the type speed. Okay, 50. And let's put up some back delay of, say it is in back delay is in milliseconds, so I just put a 1 second, that is 1000 milliseconds. Okay, and that's it. That's pretty much we have. Now if you go here, it's coming up, but what has happened to the font? Why is the font gone? Let us see, we have done something messed up. It's coming up, that stuff which I was talking about is coming up, but our font, why our font is gone? Oopsies, what happened to the font? H2 text, title text, p text and all. किस में? कुछ गड़बड़ किया हमने, हाँ। पी टेक्स्ट तो होना चाहिए था, फिर भी अगर H2 को गड़बड़ हो गया, पी तो लगना चाहिए था। हाँ, इसको हम बंद ही करते हैं, 1 मिनट, हम इसको फिर से चलाते हैं एक बार। कुछ गड़बड़ हो गया फिर से, है ना। एनीवेज, डोंट वरी, विल जस्ट फिक्स इट। टेक्स्ट नहीं लग रहा ना, हेलो आई एम, जैसे पहले पी टेक्स्ट है हमारा। हमने कहीं पर पेरेंट्स का कुछ बंद गलत तो नहीं किया? मैंने कहाँ पे लगाया ये स्पैन आईडी टेक्स्ट, ये H2 टेक्स्ट है, ये स्पैन है, ओके, ये BR है, और ये तो P टेक्स्ट है ना, हमारा क्लास P टेक्स्ट। तो स्टाइल के अंदर मेरा P टेक्स्ट है, डॉट टाइटल टेक्स्ट है, डॉट H2 टेक्स्ट है, ये तो लगना चाहिए ना। जो स्क्रिप्ट के साथ तो गड़बड़ नहीं किया हमने कहीं अपना, इसके साथ हमने गड़बड़ की, लेकिन कहाँ पे की? यहाँ पे तो हमारा जो हमारा स्टाइल है वो तो लग रहा है ना, style.css अपना। तो इसको क्या हुआ है, इसने क्यों, एक मिनट में, हमारा तो स्टाइल लग रहा था इसमें। एक मिनट, कमांड Z, I will just try to delete everything what we had done so far. ये वैनिला टिल्ट आ गया यहाँ पे, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लास किया था, और ये टेक्स्ट रैपर हमारा है, और कहाँ पे हमने चेंज की, ये हम ये लिख रहे थे ये फ़िलहाल हमारा फ़ॉन्ट लग रहा है, हाँ फ़ॉन्ट लग रहा है हमारा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसमें अपना वो टेक्स्ट करें हम, तो स्क्रिप्ट वैनिला टिल्ट है हमारा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना ये इसका, वी विल ऐड इट दिस वन, दिस स्क्रिप्ट, इसका सोर्स जो हमारा है वैनिल, कहाँ गया हमारा, इंडेक्स में ही, हाँ यहाँ पे, बॉडी से पहले कहीं पे लगाना है, ठीक है। और वो चल रहा है, लेकिन हमारा जो आईडी इसमें चेंज करना है हमें, किस में, क्योंकि वो आईडी पे काम कर रहा है। ये जो क्लास मैंने स्पैन कर लगाया, इट हैज़ टू बी द आईडी, ओके। और यहाँ पे H2 टेक्स्ट है, ये वो मसला नहीं है। नाउ इट्स कमिंग अप, ओके।
Now, the stuff which you are trying to put on, so typed text जो हमारा है वो काम कर रहा है, ठीक है ना, and all that. The font I don't like, we have to change the font. ठीक हो गया. अब हमें क्या नहीं आ रहा है, दिस टाइपड टेक्स्ट नहीं आ रहा. पहला काम इसमें आप करेंगे कि आप ये जो स्क्रिप्ट है इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और वो स्क्रिप्ट कहाँ पे लगाएंगे आप, नीचे, वो HTML के बॉडी के नीचे लगाएंगे. लगाया. उसके बाद जो स्पैन टैग यहाँ पे है उसका आईडी आप रखेंगे, जो भी आप रख रहे हो, टेक्स्ट रख रहे हो, क्या रख रहे हो, जो आपकी मर्जी है, ठीक है. फिर आप जो आपका जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है अपनी, जो जो लिंक की हुई है ऑलरेडी, ठीक है ना, उसके ऊपर आप क्या करोगे काम, वहाँ पे वो पेस्ट करोगे जो साइट पे था, ये वाली चीज़ स्क्रिप्ट के अंदर वाला जो है, वैर टाइपड से यहाँ तक किया. ओके. फिर जब आप यहाँ जाओगे उसको पेस्ट करोगे, यहाँ पे आपने एलिमेंट जो था ना उसकी वजह जगह आप टेक्स्ट लिखोगे, जो ना वहाँ पे लिखा आपने वही लिखोगे यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है ना, डबल कोट्स, सिंगल कोट चला है, एनीवेज अब डबल कोट ही डाल दो, ठीक है. तो फिर यहाँ पे फिर स्ट्रिंग्स में आप लिखो 2-4 स्ट्रिंग जो आपकी मर्जी है, जो ना आप हो, लाइक कोडर डेवलपर, मर्न स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है. एंड फिर लूप ट्रू, फिर कामा डालेंगे यहाँ पे पीछे, कामा, लूप ट्रू, टाइप स्पीड 50 कामा, बैक स्पीड 50 कामा, बैक डिले 1000, ठीक है. एक कामा की ज़रूरत है नहीं, लास्ट वाले की मैंने डाला है. हाँ हाँ, टाइप स्पीड में एस कैपिटल, यस, इट्स अ केबल केसिंग, इट्स अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल. वेरि नहीं, बैक स्पीड आप उसमें भी कैपिटल ही डालना है असल में, ठीक है, उसमें भी कैपिटल ही डालना है, इसने लिया दोनों, ठीक है. देन बैक डिले, या आप स्मॉल ही लिखो, आप स्मॉल ही लिखो, वो फ़र्क नहीं होगा मैं. हाँ, आप गड़बड़ कर रहा है. जब हम ये बीच में ले रहा है, लेकिन कभी ये नहीं ले रहा है ना, मतलब क्या है, अब इसने अभी हमारा ये है ना, अब हाँ नहीं ले रहा है, ठीक है. कैपिटल लिखो आप, ठीक है. दिस इज़ बैक स्पीड कैपिटल एंड टाइप स्पीड कैपिटल लिखो इसको, ठीक है. ओके. हाँ, तो वहाँ देखो साइड पे स्पीड कैसी है, स्पीड देखो यहाँ पे कैसी है, टाइप स्पीड है एस कैपिटल, राइट, इट हैज़ टू बी केमल केसिंग. तो वैसे ही बैक स्पीड लिखो आप, सेम एंड सो ऑन. तो चल, होपफुली इट विल रन. चल रहा है कि नहीं चल रहा है? Okay, now we style our buttons. Okay, now it's time to style it up, the buttons. अब बटन कितने मेरे पास हैं, 3 buttons हमारे पास, ठीक है. We have 3 buttons. Okay, so we have 3 buttons here and we want to style them up. So button styling, so write down here the button styling. Okay, command / and write button styling. Okay, I got the BDN and comma, oh, what's it writing, BTN comma, अबे यार इसको हो क्या गया, comma, we got the new button, हाँ, new BDN. दोनों का मैं सेम ही फ़िलहाल स्टाइल कर दूंगा, यानी कि जो हमारा BTN है, पहले 2 का क्लास BTN है, तीसरे का न्यू BTN है. फ़िलहाल जो बटन बनेगा उसका मैं स्टाइल सेम ही कर दूंगा. मैंने लिखा था कहीं पे, वो कहाँ गया, मैं लोग सिगरेटस में, ओ मैंने यहाँ पे लिखा है, command X, I can put it into the style, command V. Okay, command / the BDN and BDN, new BDN. Okay, it's a new BDN. Now here what I do is, firstly, what's the font size? I want to change the font size. Maybe this is 1.3 VW. Let's chuck it and how it goes.
So 1.3 VW will be the font size. एक तो ये नहीं लगा क्योंकि डॉट हम बोल गए लगाना, डॉट BTN एंड डॉट न्यू BTN, ठीक है। अब फॉन्ट साइज बढ़ गया इसका, ठीक। और आप एक काम करें, इनको आप फॉन्ट वेट दे दें। फॉन्ट वेट आप दे दे 700, मैं 700 दे देता हूँ, ठीक है। और फिर इनको अंदर से जो गैप बढ़ाने के लिए है, तो बैक गैप बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, पैडिंग दूंगा डेफिनेटली। आई विल गिव पैडिंग ऑफ से, पैडिंग कितनी दोगे आप, मैं दूंगा 1 VW, ओके, ताकि ये इसकी अंदर से जगह बढ़े। तो बढ़ गई अंदर से जगह। और गोलाई करने के लिए क्या करेंगे हम, बॉर्डर रेडियस से 20 पिक्सल्स, सो 20 पिक्सल बॉर्डर रेडियस देंगे तो गोल दिखेगा, ओके ओके। और इनकी विड्थ हम देंगे से 13 VW, फिर देखेंगे अगर एडजस्ट होगा, 13 ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। यू कैन मेक लिटिल बिगर, ओके। और हाइट इनकी दे दो 3 VW दे दो, ओके। नहीं, हाइट कम हो गई, 4 दे देते हैं, 4 VW, नाइस। तो ये हमारी हो गई। और इनकी पोजीशन हमें रिलेटिव नहीं चाहिए, लेकिन BTN न्यू के लिए मुझे पोजीशन रिलेटिव चाहिए। अब मैं दोनों को स्टाइल कर रहा हूँ, सो आई विल राइट पोजीशन रिलेटिव, जबकि उन दोनों के लिए रिलेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैं बटन 3 को मैं करूँगा बिफोर एंड आफ्टर, तो वो मुझे चाहिए उसके अंदर ही, तो इसलिए मुझे पेरेंट रिलेटिव बनाना पड़ेगा। तो BTN 1 एंड 2 के लिए तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, बॉर्डर दे दीजिए आप, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर नहीं, बॉर्डर रेडियस नहीं, बॉर्डर 1 पिक्सल, ओके, सॉलिड। और आप लिखिए नियॉन कलर, नियॉन का कलर होता है 00FFE5, ओके, हैश 00FFE5, याद रखें आप ज़बानी, 00FFE5, दिस इज़ आवर नियॉन कलर। आई वांट द बॉर्डर ऑफ द नियॉन कलर, हल्का नियॉन कलर आ गया, ओके, ये आ गया बॉर्डर इसका। अगर हमें इनको भगाना है आपस में से, ठीक है ना, वो गैप वगैरह हमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। वो हम लगाएंगे जो हमारा बटन कंटेनर है। तो पहले जो हमारा डॉट BTN कंटेनर, क्योंकि हमारा जो BTN कंटेनर है वो हमारा फ्लैक्स है, तो इसलिए BTN कंटेनर के अंदर हम गैप लगाएंगे ताकि दूर भागे, मानो 2 VW की, ताकि आपस में दूर भागें, ओके। अब हम यहाँ पे आते हैं कि हमारा ये आ गया, बॉर्डर आ गया, और बैकग्राउंड हम इसका देना चाहते हैं, बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड हम लीनियर ग्रेडियंट देंगे, लीनियर ग्रेडियंट। और हम रखेंगे सिर्फ 310 डिग्रीज, ओके। उसके बाद जो कलर देंगे हम, उसके लिए मैं अपनी चैनल खोलता हूँ, यो चैनल, मैंने एक वीडियो किया था यहाँ पे मर्न स्टैक में, प्लेलिस्ट, उसके अंदर ग्रेडियंट्स मैंने दिए थे, वही ग्रेडियंट देते हैं हम, ठीक है ना। प्लेलिस्ट मर्न स्टैक ये रहा, इसमें ग्रेडियंट का एक वीडियो दिया था मैंने, उसका वो देख लेना आप लोग, ठीक है, अगर फुर्सत आए। कलर ग्रेडियंट ये है, हाँ, कलर ग्रेडियंट में हम देंगे कौन सा, आई वांट सम काइंड ऑफ ए गोल्ड और समथिंग है, उसका हैश कोड खाली याद रखना में, हाँ। फिर हम मिलानी देंगे हम, दैट इज़ हैश F8E356। सो यहाँ पे मैं वही लिख लूँगा, हैश F8, ये कलर कोड है जो है F8E356, F8E356, ठीक है, कामा F8E356 के बाद हैश FF, तो लिखते हैं हैश FF और 4F88, 4F88। और तीसरा कलर हम देंगे ये वाला, हैश E38, हैश E
138, उसके बाद क्या है 1f6, 1f6। तो मैं ये बैकग्राउंड दे रहा हूँ लीनियर ग्रेडियंट, तो उससे हमारा जो है कलर बनेगा ये ऐसा वाला, दिस इज कॉल्ड एज मिलानी, राइट। जो कलर का नाम है मिलानी, सो ये ग्रेडियंट में मिलानी कलर आएगा, ठीक है ना। ये एक हमें चाहिए मिलानी, और फिर गोल्ड रश हम करेंगे हॉवर पे, गोल्ड ब्लश हम हॉवर पे दे देंगे इसका, ठीक है। फ़िलहाल तो खूबसूरत दिख रहा है हमारे पास जो मिलानी है यहाँ पे पोर्टफोलियो में। अभी कलर फर्स्ट क्लास दिख रहा है, मैच हो रहा है हमारे, क्योंकि ओवरऑल थीम के साथ भी मैच हो रहा है, ठीक है ना। ओके, अभी ये क्लिक पे वहाँ जो मैंने किया था देखो, ये वहाँ जा रहा है। जब मैं डाउनलोड सीवी करूँगा तो वो ऑन क्लिक हमने कहा था विंडो डॉट ओपन, तो वो जो वो सीवी मैंने दिया था वो खुल रहा है, ठीक है ना। और इनके ऊपर तो कुछ है किया नहीं हमने, लेकिन हम इसको एनिमेट भी करेंगे ताकि हमारे पास एक बूम आए। फिर फिलहाल पहले बॉक्स शैडो देंगे हम, ठीक है ना। बॉक्स शैडो हम देंगे इसको 0 0, ताकि वो चारों तरफ से बॉक्स शैडो आए। 2 पिक्सल का दूंगा मैं, और मैं दूंगा वही जो नियॉन हमने किया था बॉर्डर का, ये वाला। कमांड सी एंड कमांड वी, मैं चाहता हूँ यही बॉक्स शैडो में आए, या कुछ और देंगे बॉक्स शैडो में, हाँ? नहीं, बॉक्स शैडो में कुछ और देना चाहिए, लेट इट बी, फिलहाल नियॉन रखते हैं, देखते हैं फिर कैसा आएगा। ओके, और यहाँ कामा करके मैं क्योंकि मैं इसको 3D लुक देना चाहता हूँ। देखो बैक जो अंदर से है ना, अंदर से यहाँ से, ताकि वो 3D दिखे, थोड़ी सी शैडो आनी चाहिए, तो उसके लिए इंसर्ट हम इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट का मतलब है कि भाई आप टॉप एंड बॉटम कितना रख लोगे, अंदर कितना जाओगे आप, तो इंसर्ट से ये अंदर की तरफ आपको शैडो दे देगा, ठीक है ना। मैं कहूँगा फिर से 0 0, एक्स में वाई में 0, ताकि चारों तरफ से अंदर से 10 पिक्सल का और 5 पिक्सल इसका ब्लर एंड ऑल कितना वो फैलेगा, और वो आप दे दें हल्का सा ब्लैक कलर। फिलहाल मैं ब्लैक लिखूँगा, फिर मैं चेंज करूँगा इसको। आई डोंट वांट कंप्लीट ब्लैक, बट आई वांट लिटिल ब्लैकिश। उससे क्या होता है कि जो अंदर की तरफ आपको आ जाएगा, अभी लगा नहीं, कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। कुछ हो गया मसला इसमें, हमने कुछ गड़बड़ किया, ये लगा नहीं। यहाँ इंसर्ट के बाद यहाँ पे तो कामा आना चाहिए था ना, हाँ कामा तो आना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी लाइन पे आएगा। ओके, अब लगा, देखो ये ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है, लेकिन हल्का और कम करेंगे हम। ये शैडो दिखनी चाहिए, ताकि क्या होगा कि इससे एक 3D लुक आ जाएगी इसकी, ठीक है। हल्का सा बाहर आ रहा है आपको, अगर दिख नहीं रहा तो मैं इसको बढ़ा दूंगा। ये 2 पिक्सल मैंने कर दिया, इसको 5 या 10 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी वो इसमें वो लाइट जैसी आ गई बैकग्राउंड के अंदर, और अंदर से जो ये शैडो आ गई उससे बल्ज लग रहा है, अब ये 3D बटन लग रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट लुकिंग प्रिटी, बट आई वांट आल्सो हैव सम, इसका एक तो कर्सर पॉइंटर हम कर देंगे, ठीक है। और कलर मैं वही नियॉन वाला कर दूंगा, ठीक है। ओके, इसका कलर मैं नियॉन वाला कर दूंगा, और हॉवर पे कुछ होना चाहिए, वो देखेंगे, वो करेंगे हम। तो कर्सर पहले पॉइंटर होना चाहिए, कर्सर तो पॉइंटर होना चाहिए, और कलर COLOR, कलर मैं इसका ब्लैक नहीं रखना चाहता, मैं ये नियॉन वाला, ठीक है। 00FE5 याद रखें आप। कमांड C, कमांड V, ये देते, कलर थोड़ा सा मैचअप हो जाएगा उसके साथ। फिलहाल तीनों के ऊपर लग रहा है ये चीज़। ओके, फिर न्यू बटन को हम अलग से फिर स्टाइल अप कर देंगे। अब बटन के हावर पे वो मैं सिर्फ BTN पे करूँगा। BTN जो मेरा है .BTN लिखना चाहिए, हावर, उसके हावर पे क्या होना चाहिए, ठीक है ना। .BTN के हावर पे मैं डिफरेंट करूँगा। क्या करूँगा मैं पहले बैकग्राउंड चेंज करूँगा, ठीक है ना। ये जो बैकग्राउंड है, मैं कहूँगा बैकग्राउंड जो मेरा है ना, बैकग्राउंड उसका लीनियर ग्रेडियंट दे दें, लीनियर ग्रेडियंट कर दें। ओके, और 310 डिग्री में कर रहा हूँ, तो इसको भी 310 ही करूँगा मैं, 310 डिग्री। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे वीडियो में मैं कह रहा था, गोल्ड ब्लश कर देंगे, #FEE140, यानी कलर देंगे हम #FEE, कैप में ही लिखना चाहिए, FEE, अगर स्मॉल में भी लिखें तब भी चलेगा, 140 कामा,
फिर यहाँ पे जाना येलो से वो बेबी पिंक की तरफ, हैश एफ ए comma hash fa, and then we have 709a, then we have 709a. नाउ अगर हम देखेंगे जब हावर हम करेंगे इसके ऊपर, बटन्स के ऊपर, अब अपने बटन के ऊपर हावर करेंगे तो कलर फ्रॉम वन कलर टू द अदर कलर इज चेंजिंग द कलर, राइट? ओके, दिस इज़ द वन थिंग. एंड मुझे इसमें टेक्स्ट शैडो भी चाहिए जब मैं हावर करूँगा. लेट इट बी द टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट शैडो, ठीक है ना? टेक्स्ट शैडो में करूँगा इसको येलोइश ही करेंगे इसको, ये वाला. सो यानी कि जब मैं हावर करूँगा, ठीक है, तो एक तो कलर चेंज होगा और इसमें भी आएगा, लेकिन ये तो येलोइश ही ऑलरेडी जा रहा है, तो इसको येलो करेंगे तो फिर वो नहीं दिखेगा. लेट इट बी सम काइंड ऑफ वाइट. ओके, सो टेक्स्ट शैडो थोड़ी वाइटिश आ जाएगी तो लाइट आ जाएगी इसमें, ठीक है ना? उतना दिख नहीं रहा लेकिन है, इसमें टेक्स्ट शैडो आ रही है. ओके, यू कैन यूज़ डिफरेंट कलर्स. और मैं एनिमेशन में इसका एनिमेशन करना चाहता हूँ एकदम बूम जैसे आनी चाहिए हमारे पास ना, वो काइंड ऑफ लाइट. तो एनिमेशन में लगाऊंगा, आई कॉल इट पल्स. ओके, और वो भी 1 सेकेंड का लगा लूँगा मैं. एंड आई विल यूज़ द एनिमेशन में होगा क्या, वो सिंपल एक ट्रिक है कि मतलब मैं दिखाऊंगा आपको की फ्रेम्स, और एनिमेशन में हम कहते हैं कि इसका नाम है पल्स. ओके, उसका 0% जब होगा, हम सिर्फ 0% में काम करेंगे, ठीक है? आई वॉन्ट टू चेंज इट ऑन 0% वाली. सो 0% पे जब मैं दूंगा कि भाई साहब आप ऐसा करना, फिर वो गायब ही हो जाएगा, क्योंकि 100% में कुछ करूँगा ही नहीं, मैं 0% पे ही काम करूँगा. तो वो इनिशियली आ जाएगा, बूम जैसा आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल यूज़ द बॉक्स शैडो. I have the box shadow of 0, 0, then चारों तरफ से, and bigger one that is 20 pixels, और उसकी फैला भी 20 pixels, and I will give the white. So it will be like a white boom. Okay, now see when I hover it, uh, when I hover it, it's kind of a white boom coming up. बस एक ही जगह जगह आता है, बूम जैसा आता है. उसका वो कम कर लेंगे हम, ये इसका जो हमने ये किया ना बॉक्स शेडो जो हमने की, दिस इज़ लिटिल बिट लेसर. ओके, इसका 2 पिक्सल हम कर देंगे ताकि वो हल्का सा इसको लगे कि शेड जैसी है. सो व्हेन आई गो एयर एंड इट्स गिविंग द बूम. ओके, ओके, तो पहले ही यू कैन इंक्रीज इट टू 30 पिक्सल्स, से 30 पिक्सल्स white and all, and you can play with the colors, right? So that it's looking like a boom, that when I hover it's booming and it's going off, because and maybe I will also want to change the color on 100%. When I am done with the 100%, I want to change color. Okay, maybe color I want to be the blue. Maybe I want blue color at the end of the day. When it's done, that means when I go there and it's changing color to the blue. Okay, then on the hover of it. Okay, so it's changing color also. Maybe I want to also scale them up. Maybe button hover पे मैं इसको transform scale भी करना चाहता हूँ, ठीक है? I want to transform scale, and I want to make it bigger, so maybe it is around 1.2. Okay, इसकी ट्रांजिशन हम देंगे ताकि, क्योंकि हम जब कर रहे हैं तो ट्रांजिशन, वैसे इसमें ट्रांजिशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एनिमेट में 1 सेकेंड लगा रहा हूँ, ठीक है ना? बटन हावर पे, यानी कि ये जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बड़ा भी होगा अब, ठीक है ना? सो ये बड़ा भी हो रहा है और बूम भी दे रहा है एंड कमिंग बैक. इसकी ट्रांजिशन सही से नहीं लग रही है, ठीक है ना? ट्रांजिशन सही से नहीं लग रही है. सो आई शुड एड अप द ट्रांजिशन. मैं कहाँ पे दूंगा इसकी ट्रांजिशन? I should put up transition in the, नहीं, न्यू बटन पे देंगे ना पहले इसकी ट्रांजिशन. यहाँ पे यहाँ ना बटन और न्यू बटन, इस पर ट्रांजिशन तो देना चाहिए ना. मैं ट्रांजिशन नहीं लग रहा है ना ये, क्योंकि यहाँ जल्दी से हो रहा है ना ये. मैं कहूँगा ऑल 0.3 seconds, maybe 0.3 seconds, and ease in out. Okay, now when I go there, it's going back now and coming back, it's taking a little time now. Okay, it's not going, so it's getting some kind of a boom. Nice. Now इस पे नहीं चल रहा क्योंकि इसके हावर पे मैंने ये नहीं किया, इसके हावर पे हम डिफरेंट कर लेंगे, ठीक है?
and you see that these guys also on the hover, the text is having some kind of a shadow, right? So okay, इसका आप increase भी कर सकते हो ताकि ये boom ज़्यादा दिखे and all that. Okay, now it's looking 3D because ये जो shadows हैं इसमें आपको play करना हुआ है from properly, ताकि इनकी shadows जो है ना वो अच्छे से दिखे, ठीक. So it's changing the color also on the hover, जो yellowish इसकी वो from Milani to this color आ रहा है, और इसका ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना. Now it's looking pretty nice buttons. ओके, अब हमारा जो वो वाला बटन है, कौन सा, जो न्यू बटन है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट हम काम कर देंगे, ठीक है. उसमें हम वो ट्रांजिशन वाला जो किस्सा किया था वो कर लेंगे. देन यू कैन प्ले विद एनी काइंड ऑफ ट्रांजिशन, जस्ट सी द गिटहब एंड जस्ट सी द अदर साइट्स फॉर द बटन एनिमेशंस यू कैन डू. क्योंकि सारी एनिमेशन तो मैं करा नहीं सकता, लेकिन कुछ हम करेंगे, उससे फिर आपका एक आइडिया आ जाएगा. दैन यू कैन अंडरस्टैंड एनी वर यू सी द एनिमेशन यू कैन डू दैट, ठीक है ना. और जो मेरा डॉट न्यू बटन है, न्यू BTN जो मेरा है, उसका B4 कर दूंगा मैं, ठीक है. उसका B4 कर दूंगा मैं, यानी कि पहले उसका होगा. सो कंटेंट हैज़ टू बी एम्प्टी, पता नहीं क्या लिख रहा है, कंटेंट हैज़ टू बी एम्प्टी बिकॉज इट वाज बिफोर. इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका जो पोजीशन दी रिलेटिव, हालांकि उन बटन 1 बटन 2 के लिए नहीं था. This is for the button 3 because I'm creating the before and after and all, so you can use the before. I don't need after right now. So उसमें करूँगा क्या, मैं पहले position में इसका absolute रखूँगा. I will create the position absolute. Okay, okay. Now we have top में रखूँगा -2 पिक्सल, यानी कि वो पीछे जाना चाहिए, ठीक है ना. बटन के पीछे जाना चाहिए वो. Left -2 pixel, okay. And इसका जो है background मैं रखूँगा linear gradient, and मैं I try to put up all the colors I know, okay, whatever colors you have. And in linear gradient you firstly have the 45 degree, then you have the colors, you put up colors like green, like comma, put up some red, put up some blue, put up some black, put up white, put up yellow, the dirty fellow, put up some other colors, maybe other blue, and change the shade. Okay, maybe we have the another blue, we change the shade, I will change the shade, and the black, and you can put up many colors you like. Okay, so these blues I will change a little shade, this blue I will change a little deeper blue, and all that. So the background color is there. Now this is for this guy, okay, on its B4. इसकी हाइट एंड इसकी विड्थ देंगे ताकि वो दिखे, ठीक है ना. इसका फिल्टर भी कर देंगे हम, फिल्टर में ब्लर कर देंगे हम, ठीक है. फिल्टर में इसको हम करेंगे ब्लर, और वो ब्लर कितना करेंगे हम, 5 पिक्सल्स. आई कैन गो फॉर मोर ब्लर. और इसकी विड्थ, और जो बिफोर की विड्थ है वो ज़्यादा ही होने वाली है क्योंकि हमने 4 पिक्सल किए. तो ऐसे कैलकुलेट, क्योंकि मेरे को एक तो अपना 100% है, जितनी मेरी साइज़ था उतना, और प्लस 4 पिक्सल कर दें क्योंकि लेफ़्ट एंड राइट ऐड हो जाएगा. और इसी तरह से आपकी हाइट भी, इसी तरीके से हाइट भी आप कैलकुलेट कर लें, और उसमें भी आप जो आपका 100% हाइट है वो तो है ही, और 2 पिक्सल्स आप बाहर जा रहे हैं तो वो 2 पिक्सल्स भी आप ऐड करें इसमें. ये आपकी हाइट होगी क्योंकि आप 2 पिक्सल्स जो है ना पीछे से जा रहे हो, -2 पिक्सल, यानी कि ऊपर 2 पिक्सल जा रहे हो, लेफ्ट भी बाहर 2 पिक्सल जा रहे हो, इसलिए इसका 2 पिक्सल लेफ्ट और राइट में भी वो जाएगा फिर, एंड ऑल दैट. एंड उसकी विड्थ टोटल 2 पिक्सल एक्स्ट्रा होके वो उसके ऊपर आ जाएगा. ओके, सो ये इसका क्या है, B4. इसका Z इंडेक्स नहीं लग रहा, मैं Z इंडेक्स का देता हूँ. Z इंडेक्स, इसका Z इंडेक्स हम देंगे 2, ठीक है ना. जो मेरा वो बटन वाला किस्सा है उसका Z इंडेक्स हम देंगे 0, ताकि वो पीछे रहे और ये बंदा आगे रहे, ठीक है. ओके,
ये आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जेड इंडेक्स 2 तो दे दिया। बटन को मैंने जेड इंडेक्स कितना दिया, उसका -1 अगर हम कर देंगे, ठीक है, किसका, जो हमारा नहीं बटन, इसी को मुझे -1 करना चाहिए। उसका जेड इंडेक्स मैं दूंगा फिलहाल 0, ठीक है ना। तो इसका मैं 2 दे रहा था, तो ये दिखना चाहिए। somehow it's not showing up. Let us see what is the problem. Position is absolute. इसका टॉप लेफ्ट आ गया, ग्रेडियंट आ गया, फिल्टर ब्लर आ गया, विड्थ कैलकुलेट, इंडेक्स, जेड इंडेक्स अगर मैंने 2 दिया, यानी कि मैंने इसको ऊपर रखा है ना। सो इट शुड हैव कम अप एंड somehow it's not coming up. Why is not coming up? Why is this not coming up? क्योंकि ये तो आना चाहिए था ना, क्योंकि मैंने इसका जेड इंडेक्स इंक्रीज़ कर दिया, तो ये आना चाहिए था। इसका हाइट एंड विड्थ भी दे दिया मैंने, वो मैक्सिमम है। हाइट एंड विड्थ भी इसकी डॉट न्यू बी टी एन का B4, ओके। जेड इंडेक्स 2 दे दिया, तो मैंने इसको ऊपर रखा ना फिलहाल। ये तो आना चाहिए था, इसके ऊपर बैठना चाहिए था ना, ये वाला, ये जो ये वाला, क्योंकि मैंने उसका जेड इंडेक्स 0 कर दिया, तो इसको तो मैंने 2 कर दिया जेड इंडेक्स। कैन यू सी व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम, व्हाई इज़ नॉट शोइंग अप? क्योंकि मैं इसको फ़िलहाल ओपेसिटी 0 रखना चाहता हूँ, फिर मैं उसका ट्रांसपेरेंट रखूँगा और पीछे वाले को दिखाऊँगा, दैट इज़ द आइडिया। लेकिन फ़िलहाल तो ये दिख ही नहीं रहा ना, जेड इंडेक्स इसका मैंने 2 रख दिया, ओके। इसका फ़िल्टर ब्लर कर दिया, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं की मैंने। 45 डिग्री ग्रेडियंट, ग्रीन, ये बाकी चीज़ें, कामा 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 कामा, और ब्लैक कर दिया लास्ट में, और ये क्लोज हो गया, ठीक। बैकग्राउंड साइज़ का बढ़ा देते हैं, बैकग्राउंड साइज़ 400%। इट्स नॉट शोइंग अप, आई डोंट नो व्हाई। फिल्टर ब्लर, विड्थ मैं तो गड़बड़ नहीं की मैंने, विड्थ एंड हाइट ये ठीक है। और उसको मुझे एनिमेशन भी देनी है, ट्रांजिशन देना है, बॉर्डर राइडस सेम देंगे, बॉर्डर राइडस फिलहाल हम देंगे, बॉर्डर राइडस उसको सेम देना चाहिए जो उसका है, 20 पिक्सल्स। इसका नीचे वाला वो ब्रेस कहाँ है, स्टिल नॉट कमिंग अप। ये मैंने हॉवर पे किया कि किस पे किया, ये मैं B4 कर रहा हूँ ना, हाँ नहीं B4 कर रहा हूँ तो आना चाहिए जी, क्योंकि B4 किया मैंने तो इसके ऊपर आना चाहिए ना। देर इज़ सम इशू राइट नाउ ऑन इट, कंटेंट, दिस इज पोजिशन इज़ एब्सोल्यूट, ओके। और जो पेरेंट है उसका न्यू BTN, उसकी पोजीशन न्यू BTN यहाँ पर है, देखिए उसकी पोजीशन में रिलेटिव कर दिया, तो ये इसी के साथ लगेगा। टॉप एंड लेफ़्ट दिया मैंने इसको, हाँ टॉप एंड लेफ़्ट तो दिया हमने, -2 पिक्सल है, तो यानी कि ये ऊपर से ही आएगा, इसके ऊपर से ही इसकी ये है। और जेड इंडेक्स भी मैंने इसका 2 दिया, यानी कि ये ऊपर बैठेगा। हालांकि मुझे उसका -1 देना है, मुझे पीछे बिठाना है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं देख रहा था इसको। व्हाट कुड बी द इशू? Can anyone see this issue? Why is not showing up? Hmm. इधर तो सारा ही बैठ गया कुछ इसका कुछ मसला है, इशू है विद द ब्राउज़र एंड ऑल, राइट? हाँ, कुछ नहीं नहीं, यहाँ चल तो रहा है, लेकिन एवरीथिंग इज़ रनिंग फाइन, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं आ रहा, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, हम ही गड़बड़ कर रहे हैं कुछ, ठीक है ना, कहीं पर हम गड़बड़ कर रहे हैं कुछ। बैकग्राउंड, या तो हमने ब्रेस में गड़बड़ किया है या कुछ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू बटन मैंने बनाया, ठीक है ना। हम्म ये न्यू बटन मैंने बनाया यहाँ पे, और इसका मैं कह रहा हूँ कि ये रिलेटिव पोजीशन है, व्हाटएवर। अब नहीं, ये तो रखना है ना रिलेटिव, ताकि जो बंदा इसके आए ना ये, क्योंकि ये जो न्यू बीट बटन का मैं B4 या आफ्टर करूँगा, वो अब इसी का पोजीशन लेगा ना, इसी बंदे का, वरना ये टॉप लेगा स्क्रीन का टॉप, है ना।
हाँ, नहीं नहीं, फिर तो आपको समझ नहीं आया है वो चीज़। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। हम ही गलत कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है ना। जस्ट लेट मी सी, क्योंकि ये दिखाना चाहिए था, इसके ऊपर आना चाहिए था जी। वही तो मसला है ना, हमें क्यों नहीं हो रहा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपका, कहाँ गया ये, लगा है कि नहीं है, चाहिए नहीं लगा है, एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड, आई विल ज्वाइन दिस। हाँ, इस कमिंग अप नाउ। देखिए ये जो पेरेंट, ये है ना पेरेंट, ये है ना न्यू बीटीएन, इसी का मैं अब न्यू कर रहा हूँ। मैं जो न्यू बीटीएन है, इसका मैं अब बिफोर कर रहा हूँ, या मैं इसका आफ्टर करूँगा। लेकिन उनकी पोजीशन जब एब्सोल्यूट होगी, तो वो जो बिफोर एंड आफ्टर, मैं यही बटन ऐसे ही बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो तो उसका टॉप अगर मैं कहूँगा ज़ीरो, वो इधर इधर पे आ जाएगा ना। लेकिन अगर मैंने पेरेंट, जो पेरेंट है उसको रिलेटिव कर दी पोजीशन, तो अब जो बंदा है मैं कहूँगा टॉप ज़ीरो, लेफ़्ट ज़ीरो, वो इसका टॉप एंड लेफ़्ट लेगा। अब ये बंदा इसी के अंदर कहीं पर हो सकता है, या तो फुल साइज़ आप कर रहे हो या छोटा भी विंडो भी बना दो। अगर आपने छोटा साइज़ कर दिया तो वो इसी के अंदर आ जाएगा। सो आई वॉन्ट इट कि इट शुड बी विद इन दिस थिंग, ठीक है ना। हाँ, अब इशू हमारे पास ये है कि अभी तो अगर मैंने जेड इंडेक्स इसका रखा 2, क्या रखा, अगर मैं पीछे रखता तो फिर दिखता नहीं, लेकिन मैं तो जेड इंडेक्स रख रहा हूँ 2, तो ये तो दिखना चाहिए ना। वही मसला है मेरा, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू ascertain व्हाट्स हैपनिंग। यार ये भाग क्यों नहीं रहा। ओके, हमारा वी एस कोड कहाँ गया, ये है ना। अरे यार वी एस कोड क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ किया, जो न्यू बटन का B4 है, देखिए, क्योंकि हमें तो आना चाहिए ना ये, क्योंकि अगर मैंने इसका जेड इंडेक्स 2 रखा तो ये आना चाहिए, ये नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा वो देखना पड़ेगा। आप जिसको आ रहा है वो देखो, मेरे जो कोड मैंने कहाँ पे गड़बड़ किया, कुछ किया होगा कहीं पे हल्का सा। जो डॉट न्यू बटन है उसका B4 पे मैं काम कर रहा हूँ कि कंटेंट आपका जो है, पहले पोजीशन आपकी एब्सोल्यूट है, टॉप -2 पिक्सल है, लेफ्ट -2 पिक्सल मैंने रखा, और जेड इंडेक्स मैंने 2 दिया ताकि वो ऊपर रहे। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट दे दिया मैंने 45 डिग्री के साथ, फिर ग्रीन किया, फिर रेड किया, कामा कामा लगे हुए हैं सार सब में, है ना। और हो गया ये ख़त्म। उसके बाद जो बैकग्राउंड साइज़ है उन्हें 400% दे दिया। अगर मैं बैकग्राउंड से 4% नहीं देता हूँ फिलहाल, मैं इसको बंद ही कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा 400% नहीं है, ओके। तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैकग्राउंड साइज़ 400%। फ़िल्टर ब्लर दिया मैंने इसको 5 पिक्सल का, टर्मिनेटर बंद है। विड्थ दी मैंने, कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं भाई, तो अब तो 100% करो, 4 + 4 पिक्सल्स इसको ऐड कर। और हाइट, उसको भी CALC यहाँ पे लिखना है, ये गड़बड़ एक हो गई थी। कैलकुलेट, मेरे ख्याल से यही इशू था, ठीक है, हाँ ये इशू था, देखो C का इशू था। दैट वाज द प्रॉब्लम। कैलकुलेट में C भूल गए थे भाई, CAL आ गया था, क्योंकि इसकी हाइट लग नहीं रही थी ना, हाइट कुछ नहीं थी तो वो विड्थ थी, लेकिन हाइट 0 थी, तो ये दिख नहीं रहा था। तो ये आ गया आपका, ये वाला चीज़ आ गया। लेकिन अब मैं इसको छुपाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए ये अभी, इसलिए मैं इसका -1 कर दूंगा ताकि वो पीछे जाए। तो जब ये पीछे गया अभी, ठीक है, अब इसकी विजिबिलिटी में अभी 0 रखूँगा। इसकी ओपेसिटी में रखूँगा, क्या रखूँगा, ओपेसिटी रखूँगा मैं 0, ताकि ये मुझे दिखे ही ना। ठीक हो गया, तो ये गया काम से। अब ओपेसिटी इसकी 0 हो गई। और अब मैं क्या काम करूँगा, काम इसका ओपेसिटी भी कर सकते हैं। बॉर्डर अगर आपको नहीं चाहिए वो भी आप हटा सकते हो, जैसे बॉर्डर में मुझे नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल बॉर्डर नन, एंड इसका आउटलाइन भी नन होना चाहिए, आउटलाइन भी नन। यानी कि अभी अगर ओपेसिटी इसकी हटाएंगे तो मैं अभी अभी हम दिखेंगे इसको। तो अब उसका मैंने रखा, ये -1 रखा ताकि क्लिक मी दिखे, वरना क्लिक मी दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए इसका 0 रखा, जेड इंडेक्स, ताकि ऊपर आए। और जो वो बंदा है, ये जो B4 मैंने किया वो पीछे रखा, और देखो थोड़ा सा -2 पिक्सल ये बाहर भी इसके जा रहा है ना, हल्का 2 पिक्सल ये बाहर भी जा रहा है। जब मैंने कहा इसका टॉप एंड बॉटम -2 पिक्सल, क्योंकि पेरेंट का जो रिलेटिव था और जो ये
एब्सोल्यूट बना, वो एक और बटन बना, और लेकिन वो स्टार्ट कर रहा है -2 पिक्सल, यानी कि 2 पिक्सल ऊपर, मैं यहाँ से शुरू थोड़ा सा, और लेफ्ट भी थोड़ी सी पीछे, इसलिए थोड़ा थोड़ा हल्का सा ही बाहर निकल रहा है, एंड आई वांट इट कि ये थोड़ा सा बाहर निकले, और ये जो बॉर्डर शोल्डर है ना उसको उसके ऊपर आ जाए, वरना पीछे का बॉर्डर वाला अगर हम इसको बराबर लेंगे तो पीछे का फिर भी बॉर्डर दिखेगा, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी दिखे पीछे वाले का, इसलिए मैंने टू बी प्रिकॉशंस के लिए मैंने इसको साइज़ जो B4 का साइज़ है हल्का बड़ा दे दिया, 2 पिक्सल मामूली होता है, लेकिन वो बढ़ा देगा ताकि वो पूरा इसको ऑक्यूपाई करेगा। ठीक हो गया। अब मैंने ये सारा काम किया इसका, और इसको मैं ऊपर मैं एक एनिमेशन भी लगाऊंगा, और ट्रांजिशन पहले लगाऊंगा मैं इसको, पहले मैं एनिमेशन लगाऊंगा, एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन जो है उसका नाम रखूंगा मैं ग्लो, और वो 20 सेकेंड्स हमें चलेगा, लीनियर चलेगा और इन्फिनाइट चलेगा। ठीक है ना, चल गया। ओपेसिटी मैं इसकी 0 रखूँगा ताकि मुझे ओपेसिटी नहीं चाहिए इसकी, और इसका ट्रांजिशन हम करते हैं ऑल, लेकिन इसकी ट्रांजिशन मुझे सिर्फ ओपेसिटी पे चाहिए, जो उसकी ओपेसिटी है 0.3 सेकेंड्स में इसकी अपनी ओपेसिटी पे काम करेगा, एंड ईज इन आउट। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि ओपेसिटी, अगर ट्रांजिशन का समझ नहीं आता ट्रांजिशन वाला वीडियो देख लो, उसके ऊपर काम किया था बहुत सारा हमने, तो वो देख लो। और जब ये एक्टिव होगा, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है ना, जब आप किसको, जब न्यू बटन को क्लिक करोगे, डॉट न्यू BDN पे जब एक्टिव होगा ये, उस वक्त आपको करना क्या है, इसका कलर आप चेंज कर दो टू वाइट। फॉर एग्जाम्पल जब ये एक्टिव होगा तो उसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो देखो वाइट, वाइट चेंज हो रहा है कलर। ठीक है ना, एक तो ये हो गया। ओके, और जब इसका आफ्टर जो है, जब एक्टिव आफ्टर जो है, उस वक्त क्या करोगे आप, यानी कि डॉट न्यू BTN जो है, ठीक है ना, वो जब एक्टिव था और उसका आफ्टर, उस वक्त आप बैकग्राउंड जो मेरा है ना वो मुझे चाहिए नहीं, वो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दो। बैकग्राउंड क्या करो, ट्रांसपेरेंट, यानी कि अभी तो ये दिख रहा है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा उसके बाद जो इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर में। ओके, आई विल सी इट। अभी ये शायद लगा नहीं, मैं देखूँगा क्या मसला है, क्योंकि वो पीछे वाला ट्रांसपेरेंट तो होना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ न्यू बटन जब एक्टिव है उस वक्त जो उसका आफ्टर है उसमें बैकग्राउंड ट्रांसफर करो। ठीक है, और फिलहाल अच्छा वो होगा भी ट्रांसफर, तो वो पीछे वाला दिख नहीं रहा था शायद, तो उसकी ओपेसिटी वापस लाते हैं हम। जो न्यू बटन है उसके हॉवर पे, जब हॉवर हो रहा है उसका जो B4 है, ठीक है, B4 जो अभी हमने बनाया जिसकी ओपेसिटी हमने 0 कर दी थी, उसकी ओपेसिटी में अब 1 कर दो। उसकी ओपेसिटी क्या कर दो, 1, यानी कि जब मैं हॉवर कर रहा हूँ तब बैकग्राउंड अब ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसकी ओपेसिटी जो थी, जो पीछे वाला बंदा है उसकी ओपेसिटी 1 आ गई तो वो दिखेगा, लेकिन ऐसे बदा नहीं दिखना चाहिए, वो घूमना चाहिए। तो उसके लिए एनिमेशन का हमने जो इंतज़ाम रखा है, किसका एनिमेशन, वो जो एनिमेशन हमने रखा है उसको @की-frames नाम रखा था, ग्लो शायद, ये रहा ना, ये ग्लो वाला, तो वो ग्लो करेगा अभी। तो उसमें 0% पे आप क्या करना चाहते हो कि आप बैकग्राउंड की पोजीशन जो ना हमने उस पे किया था रैपर पे काम, बैकग्राउंड पोजीशन जो आपका है वो 0 पे रखो। ठीक है, नाउ आई कॉपी दिस एंड आई से कमांड ऑप्शन डाउन एरो, और यहाँ पे आपका बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो 400% कर दो उसकी पोजीशन, और 0 एंड 0 और ये जो है यहाँ पे 400% जो हमने रखा था, इसके ऊपर अगर आप भूल गए हो कि मैंने किया था वो डिस्कस ये चीज़ें, 400% हमने रखा था ना बैकग्राउंड यहाँ पे, वो मैंने कमेंट आउट किया था शायद, नहीं BTN तो यही है ना।
बैकग्राउंड साइज़ मैंने 400% किया था कहीं पे, वो किस में मैंने किया, यहाँ पे इसमें किया था ना, ये बैकग्राउंड साइज़, इसको वापस लाते हैं, ठीक है ना। अब हम जाएंगे इधर, तो जब मैं इसके ऊपर हावर करूँगा, सो नाउ इट्स मूविंग बट नॉट मूविंग फास्टर, सो इसको थोड़ी सी स्पीड देनी पड़ेगी हमें, है ना। हमने कहा कि भाई बैकग्राउंड इसमें ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे 50% पे काम करना है और यहाँ पे 100% पे काम करना है, ये मसला हुआ था, ये चल नहीं रहा था असल में। सो अब ये चल रहा है बैकग्राउंड, जो ही आप हावर कर रहे हो इट इज़ लुकिंग द कलर्स, लेकिन कलर्स में ये ब्लैक कम कर लेना, ब्लैक के बदले कुछ दूसरे कलर्स दे देना, क्योंकि ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा। सो ब्लैक को मैं चेंज करता हूँ और दिया मैं दो दो बार ब्लैक कुछ, ये इसमें ये कलर रख लो, ये जो वाला है इसको रेड रख लो, ठीक है ना। हाँ, जब मैं इस पर हावर करूँगा फिर भी ब्लैक आ रहा है, मुझे ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक कहाँ पर है, अच्छा ये, इसको पक्का वाला रेड रख लो, ठीक है। एंड यू कैन चूज नाइस कलर्स, so that it looks pretty nice, na? The rainbow is going on and looking perfect, it's looking pretty good now, right? Right, the animation is going on when you hover the mouse on it, and it's really, the colors are moving and all, it looks like some kind of colored cloud is going on a background, it looks like a glass that you can see through the glass, the click, because click means is visible, and background is looking like glassy, and it's looking as if you're looking from the window, and there are some colorful rainbow, so it's taking you into the rainbow. So it's pretty much good. Now we need only these two guys to style them up very quickly. I'm like tired now. Let's talk about the social icons. So पहले social container जो आपका है, जो हमारा social container है उसके ऊपर काम करेंगे कि क्या वो flex है, हमने flex बनाया उसको पहले, जो social container है मेरा, इसको मैं flex बनाऊंगा so that I can add up the gap and all, ठीक है। हाँ, social container आ गया, ये साथ साथ आगे चिपक गया, तो लेकिन हम इसको अब स्टाइल अप करेंगे जल्दी से, एंड वी वाइंड अप द क्लास, ओके। डॉट social container, so we got a social container, and उसको पहले वो चिपक रहा है ना ऊपर वाले से, so उसका मार्जिन टॉप हम देंगे ताकि वो नीचे लगे, say 4VW, 4VW, ओके ओके। और फॉन्ट साइज, इनफैक्ट इनको हमने एंकर टैग में लगाना था ताकि वो उसके क्लिकेबल बने एंड ऑल दैट, फ़िलहाल मैंने ऐसे ही कर दिया, तो फ़िलहाल देखने के लिए फॉन्ट साइज़ इसका सोशल कंटेनर का नहीं, सोशल कंटेनर में थोड़ी ना करेंगे, वो करेंगे हम किस में, वो करेंगे हम आई टैग्स में, ठीक है। यहाँ पे हम गैप देंगे ताकि वो दूर दूर भागे, 5VW, सिर्फ मैं गैप और मार्जिन दे रहा हूँ ताकि ये दूर भागे और ऊपर से भागे, एक तो ऊपर से भाग गए और आपस में दूर भाग गए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम पकड़ेंगे किसको, जो आई है हमारा, और उनके हावर पे भी कुछ करेंगे हम, ठीक है ना। जो सोशल कंटेनर है उसके उनका फॉन्ट वगैरह थोड़ा बड़ा करेंगे हम, सोशल कंटेनर में जो आपका आई टैग है उसके ऊपर काम करेंगे, जो सोशल कंटेनर में आई टैग है, तो उनका कर्सर पॉइंटर करेंगे पहले हम, बिकॉज वी वांट कि भाई साहब वो क्लिकेबल है, ठीक है। फॉन्ट साइज़ जो उनका है थोड़ा बड़ा कर देंगे, से 4VW हम कर देंगे उनका, ओके। और बताएं जेड इंडेक्स उनका 3 रखेंगे, सो दैट आर क्लिकेबल, जेड इंडेक्स 3, वैसे अभी करने की ज़रूरत नहीं थी जब, तो फ़िलहाल इसका हम हो गया, ये तो मोटे हो गए थोड़े से, अच्छे दिख रहे हैं। अभी इनका हॉवर पे थोड़ा सा कुछ चेंज करेंगे हम, डॉट सोशल कंटेनर जो है उसमें जो आई टैग है उसके ऊपर जब हॉवर होगा ना, तब आप कुछ चंद चीज़ें कर लें इसके ऊपर। पहले इसका कलर जो है ना वाइट कर दो, क्या कर दो, वाइट, कलर वाइट कर दो। इसमें सोशल जो फॉन्ट आइसम है उसमें कलर वाइट आता है, ताकि वो वाइट उसका कलर आ जाएगा, जो जो ही हॉवर होगा का कलर वाइट हो गया, ठीक है। पता नहीं ये क्या खुल गया मेरा एड्रेस की, पता नहीं क्या। अच्छा जी, कलर वाइट कर दिया आपने। बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो, बैकग्राउंड कलर आप ब्लैक करो उसका, ताकि पीछे वाला कलर ब्लैक हो, तो जो ही आप करोगे वाइट दिखेगा, पीछे वाला ब्लैक है, तो वाइट एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन ठीक दिख रही है मेरे को।
यू कैन अपने हिसाब से फिर आप चेंज भी कर सकते हो। इनका बॉर्डर रेडियस जो है वो 50% कर दो ताकि गोलाई में आ जाए, क्योंकि पीछे थोड़ी सी मुझे वो चकोर दिख रहा था, वो वाइट निकल रहा था बाहर, सो वो गोलाई के अंदर वो दिखेगा नहीं फिर। ठीक है, हो गया ये। अच्छा, ट्रांसफॉर्म में मोटा करना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्म हम कर ही लेते हैं स्केल। ठीक है, स्केल कर लो 1.5 कर लो, 1.5 गुना। तो जब भी आप हॉवर करोगे तो ये थोड़ा सा मोटा होके आ जाएगा। सो ट्रांजिशन इसका हमें करना चाहिए ताकि वो ऐसे ना दिखे, ये फटाक से आ रहा था ना बाहर, तो ट्रांजिशन इसको 0.3 सेकेंड्स कर दो एंड ईज इन आउट, ताकि आराम से दिखे, निकले बाहर। ओके, और बताएं क्या करेंगे हम, बॉक्स शेडो कर लो इसको, बॉक्स शेडो। ठीक है ना, 0.05 पिक्सल्स, वाइट, मैं चाहता हूँ वाइट ही आ जाए, थोड़ी सी इसकी ना वो ग्लो जैसा आ जाएगा। ठीक है, तो जब हॉवर करेंगे एक तो बाहर आ रहा है और इसके वो ग्लो भी आ रहा है। ठीक है ना, वो ज़्यादा देना पड़ेगा हमें क्योंकि दिख नहीं रहा, पीछे रह रहा है 10 पिक्सल्स का। ठीक है, हल्का सा दिख रहा है मुझे, लेकिन उतना भी नहीं दिख रहा है, तो इसको हम वो मोटा कर देंगे इसे 10 पिक्सल्स का। ठीक है, ताकि वो फैले। हाँ, अब फैल रहा है, सो ज़्यादा फैल रहा है तो 5 पिक्सल कर देना फिर। ठीक है, फिलहाल मैं इतना रख लेता हूँ। और बताएं, लास्ट में इसका टेक्स्ट शेडो करेंगे, अंदर से हमें ग्लो आना चाहिए। सो वो टेक्स्ट शेडो हम देंगे 0 पिक्सल, 0 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, ये मैं समझा चुका हूँ। और मैं येलो ही देता हूँ, या कुछ और दे दें आप, तो आपकी मर्ज़ी है। तो अंदर से आप शेडो आ गई, शेडो वाइट एंड इसका कॉम्बिनेशन बन गया, तो लग रहा है कुछ मसला है। ठीक है ना, नाउ इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। सो आई गॉट लॉट ऑफ एनिमेशंस हियर। अब बिफोर आफ्टर, बिफोर में हमने इसकी एक लेयर बना दी और वो फिर चल रहा है उसका कलर एंड ऑल। अब कलर कॉम्बिनेशन थोड़ी बेटर करनी है ताकि वो अच्छा दिखे, एंड इसकी टेक्स्ट शेडो आ गई। और यहाँ पे अब पंगा पड़ गया किसी का, यही चल नहीं रहा, कौन? ये बैक ब्लैक मोड में ही ज़्यादा दिखेगा, अच्छा है ना, इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। ठीक है, क्योंकि ब्लैक में हमारे पास ये कलर्स अच्छे दिखेंगे। हाँ, इसमें ये जो है typed.js वो क्यों रूट गया भाई, typed.js रूट गया हमें, typed.js क्यों रूट गया, हमने कहीं गड़बड़ की क्या? कमांड एस कंट्रोल एस से तो सेव्ड है, HTML में तो कोई गड़बड़ नहीं की हमने। स्क्रिप्ट लगा हुआ है, script.js भी लगा हुआ है, तो की प्रॉब्लम है इसकी। एक बार इसको बंद करते हैं, index.html इसका डिस्पोज ऑफ करेंगे एंड वी से गो लाइव। हाँ, इट्स वर्किंग फाइन, ये कभी हो जाता है। ठीक है, इट्स वर्किंग फाइन। सो नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड अबाउट सेक्शन, तो हो गया हमारा, नहीं ये होम सेक्शन हो गया ना, अबाउट सेक्शन एंड अदर सेक्शंस। सी यू गाइस डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह ताला। एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, इफ़ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस ही और शी कैन पुट अप, ये करें आप, और फिर आप वहाँ लगा सकते हो अपने क्वेश्चंस इन द जो आपका ये वो सेक्शन है। लेकिन एक कोड आप करें, ठीक है ना, डू दिस व्हाट वी हैव डन so far. Anybody wants the videos, he can ask for it. I will send you personally that link, because videos are very important for revision purposes. ठीक है ना? Okay जी, अल्लाह हाफिज़।